Hi guys, today we are going to discuss about nephrotic syndrome. So, I have planned to explain in Hindi. So, अगर कुछ गलती है तो थोड़ा excuse कर लो. I am trying to speak both in English as well as Hindi. So, please अगर आपको कुछ doubt है तो you can put in comments box so that I will clear your doubts. So, with no delay, let's move on to the topic. Nephrotic syndrome. It's a common condition in the renal disorder. So, nephrotic syndrome सभी को मालूम है ये renal condition के अंदर आता है. So, it's a condition characterized by proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia, edema. Sometimes it is accompanied by hematuria, hypertension and reduced glomerular filtration rate. So proteinuria means protein content will be excreted in the urine. Hypoalbuminemia means the decreased level of albumin content in the blood. Hyperlipidemia, increased cholesterol level in the blood. Edema, swelling all over the body. Hematuria means blood in the urine. Hypertension, increased blood pressure and reduced glomerular filtration rate. And moving on to the definition, it's a clinical manifestation of a large number of glomerular disorder. It is characterized by increased glomerular permeability and is manifested by massive proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia and edema, which is generalized and also known as anasarca and dropsy. Anasarca means it's nothing but edema. Dropsy, it's an old term used for edema. So, nephrotic syndrome matlab it's a condition manifested by large number of glomerular disorder. Normally किडनी में ग्लोमरुलस पार्ट का काम क्या है, मतलब वो सारे वेस्ट मटेरियल्स को एक्सक्रीट करना. दैट इज बॉडी को क्या क्या ज़रूरत है वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स सारे चीज़ को ऑब्जर्व करके वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करने का काम दिस ग्लोमरुलस का फंक्शन है. सो इसी कंडीशन पे क्या होगा, प्रॉपर अब्जॉर्प्शन वोंट बी देयर. उसी के वजह से प्रोटीन ज़्यादा यूरिन पे एक्सक्रीट होगा, ब्लड में एल्बुमिन कंटेंट कम होगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, सारे बॉडी पे एडिमा होगा. ओके, सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज a common disorder which is associated with large number of glomerular disorder and is characterized by increased glomerular permeability and is manifested by massive proteinuria, hypoalbuminemia, hyperlipidemia and edema. Next is incidence. Nephrotic syndrome preschooler age में ज़्यादा कॉमन है. दैट मीन्स 2 to 6 years of age में कॉमन है. एंड वाइल कंपेयरिंग मेल्स एंड फीमेल्स, मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड होगा. एंड 2 to 7 children are affected in 1000 children. Next, moving on to types of nephrotic syndrome. It is divided into 3 types. One is primary nephrotic syndrome, second secondary nephrotic syndrome and the third is congenital nephrotic syndrome. So first, primary nephrotic syndrome is caused by idiopathic reasons, means हमको reason मालूम नहीं था, and it is related to any disease related to glomerular disease. Okay, so कुछ disease के कारण और अननोन मीन्स हमको रीज़न मालूम नहीं था, उसी के वजह से क्या होगा, और लाइक कुछ अबनॉर्मल फंक्शन इन द ग्लोमरुलस, उसी के कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम आया तो उसको हम प्राइमरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम बता देंगे.
नेक्स्ट सेकेंड टाइप इज सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम. सेकेंडरी मतलब सभी को मालूम है, मीन्स कुछ डिसीज के कॉम्प्लिकेशंस के वजह से ये डिसीज आया तो देन इट इज नोन एज सेकेंडरी नेफ्रोटिक सिंड्रोम. ओके, सो इट इज एसोसिएटेड with some other etiology. Next, congenital nephrotic syndrome, it's the third type. So from the name itself it is clearly mentioned congenital. Congenital मतलब birth से अगर बेबी को like gene disorder or genetic defect के वजह से this nephrotic syndrome आया तो then it is known as congenital nephrotic syndrome. So there are three types. They are primary, secondary and congenital. Next, moving on to etiology. So मैंने पहले बता दिया three types है. So first primary nephrotic syndrome क्यों आ रहा है उसको हम देख. First is minimal change disease. Minimal change disease मतलब normally a normal glomerular capillary keeps protein molecules in the blood. सो हमारा बॉडी को प्रोटीन ज़रूरत है क्योंकि बॉडी बिल्डिंग कॉम्पोनेंट, सो उसको ब्लड में ऑब्जर्व करेंगे. सो अगर दिस ग्लोमेरुलस अच्छा से फंक्शन नहीं कर रहे तो ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा. सो दैट क्या होगा, यूरिन में एक्सक्रीट होगा, उसी के वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम आएगा. And the second is focal segmental glomerulosclerosis. So this glomerulus में scar tissues develop हुआ तो proper absorption function won't be there. उसी के कारण भी this nephrotic syndrome आने का chances ज़्यादा है. Next is membranous proliferative glomerulonephritis. सो यहाँ कुछ डिसीज और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वजह से एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस विल बी देयर. उसके कारण क्या होगा, ये मेम्ब्रेन लाइक फॉर्मेशन, द डिपॉजिट विल बी सेक्रेटेड एंड इट विल कवर द ग्लोमेरुलस. सो उसके वजह से भी दिस नेफ्रोटिक सिंड्रोम आने का चांसेस ज़्यादा है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी. सेकेंडरी मीन्स कुछ डिसीज के वजह से और कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कुछ डिसीज एंड्स इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम. द फर्स्ट इज डायबिटिक नेफ्रोपैथी. अगर बेबी को डायबिटिस है सो वहाँ भी क्या होगा, प्रोटीन लीक विल बी देयर. सो उसके वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम आने का चांस ज़्यादा है. नेक्स्ट इज सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस. सो दिस डिसीज अगर बेबी को है तो ये सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करो, उसके वजह से किडनी में इन्फ्लेमेशन और किडनी फेलियर, उसके कारण नेफ्रोटिक सिंड्रोम आने का चांस ज़्यादा है. नेक्स्ट इज सार्कोइडोसिस. सो इट्स अ लंग डिसीज. उसके वजह से क्या होगा, ऑर्गेनल डैमेज होगा. सो इट विल ऑल्सो लीड्स टू नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेक्स्ट इज सिफिलिस. अगर इफ द सिफिलिस अच्छा से ट्रीट नहीं हुआ तो इट ऑर्गेनल डैमेज विल बी देयर, उसके वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम आने का चांस ज़्यादा है. नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस बी. दिस इज ऑल्सो ए रीजन फॉर नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेक्स्ट HIV थ्रू ऑल्सो डिजीज होने का चांस ज़्यादा है. नेक्स्ट इज अमिलॉइडोसिस. अमिलॉइडोसिस इट्स अ बोन मैरो डिसीज. दिस ऑल्सो अफेक्ट द ऑर्गन्स, उसके वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम आने का चांस ज़्यादा है. नेक्स्ट इज मल्टीपल माइलोमा. सो हियर इट्स अ टाइप ऑफ कैंसर दैट बिगिन्स इन प्लाज्मा सेल्स. सो इम्यून डिफेंस सिस्टम विल बी देयर, उसके वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगा. इट विल ऑल्सो लीड्स टू ऑर्गेनल डैमेज, उसके वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम आने का चांस ज़्यादा है. नेक्स्ट इज वैस्कुलाइटिस. So vasculitis means organal damage will be there, so kidneys will be affected. So finally क्या होगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम. नेक्स्ट जेनेटिक डिसऑर्डर. अगर दोनों पेरेंट्स कैरियर है तो उसमें 25% ऑफ बेबी विल बी अफेक्टेड, 50 विल बी कैरियर एंड 25 विल बी हेल्दी. नेक्स्ट ड्रग्स. अगर कुछ मेडिसिन उसके वजह से भी आने का चांस.
नेक्स्ट इज पैथोफिजियोलॉजी. सो यहाँ ग्लोमरुलस कैपिलरी मेम्ब्रेन डैमेज हो रहा है, क्योंकि ग्लोमरुलस का फंक्शन है बॉडी को क्या क्या ज़रूरत है वो सारे मेनली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को ब्लड में ऑब्जर्व करना है, बट हियर डैमेज हो रहा. सो क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज एल्बुमिन कंटेंट सारे लॉस होगा. सो बॉडी विल बी सेंडिंग द स्टिमुलस टू द ब्रेन. सो लिपोप्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए स्टिमुलेट होगा, उसके वजह से क्या होगा, हाइपरलिपिडीमिया. एंड द अदर पार्ट प्लाज्मा ज़्यादा लॉस हो रहा, प्लाज्मा प्रोटीन दैट इज एल्बुमिन कंटेंट, उसके वजह से हाइपो एल्बुमिनीमिया होगा. डिक्रीज टैनकोटिक प्रेशर, उसके वजह से फ्लूइड्स इंटरसेलुलर फ्लूइड विल बी शिफ्ट टू द एक्स्ट्रा सेलुलर एरिया, उसके वजह से वहाँ एडिमा फॉर्मेशन होगा. देन एक्टिवेशन ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, उसके वजह से सोडियम बॉडी में अंदर रिटेंशन होगा. ड्यू टू दैट ऑल्सो एडिमा विल बी देयर. ओके, next is clinical manifestation. So first is edema around eyes, legs and labia region. That means periorbital edema, pedal edema will be there. Anasarka generalized body edema, पूरा body पे edema होगा. Next ascites, fluid collection in the peritoneal cavity. Next urine output कम होगा, and the urine will be frothy and increased specific gravity will be there, क्योंकि infections के कारण वो clear urine नहीं होगा. Next hematuria, blood in the urine. Then कुछ babies को fever आएगा, rashes, joint pain, then pallor, baby irritable होगा, anorexia but weight gain. ओके, बेबी कुछ नहीं खाएगा बट वेट ज़्यादा बढ़ जाएगा. नेक्स्ट ससेप्टेबिलिटी टू इन्फेक्शन, कुछ भी चीज़ को एक्सपोज हुआ तो जल्दी से जल्दी इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा है. दिस इज पिटिंग एडिमा. ये नॉर्मल सिम्टम्स, हेमेचूरिया, ब्लड विशन, हाइपरटेंशन, ओलिग्यूरिया. ओलिग्यूरिया मतलब less than 40 ml of urine. नेक्स्ट असोटीमिया, दैट इज नाइट्रोजन कंटेंट ब्लड में ज़्यादा होगा. प्रोटीनूरिया, प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होगा यूरिन पे. नेक्स्ट डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन, कैसे हम डायग्नोस करना है. फर्स्ट इज हिस्ट्री कलेक्शन, फैमिली हिस्ट्री, बर्थ हिस्ट्री, एंटीनेटल हिस्ट्री. अगर पेरेंट्स को और लाइक ग्रैंड पेरेंट्स को कुछ ये वाला कंडीशन है तो उसके बारे में पूछना है. नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, वहाँ एडिमा, असाइटिस, ये सारे चीज़ ऑब्जर्व करना है. नेक्स्ट यूरिन एनालिसिस, सीरम टेस्ट, हेमेटोलॉजी दैट इज ब्लड इन्वेस्टिगेशन, CBC, देन बायोकेमिस्ट्री, ये सारे चीज़ फाइन करना है. नेक्स्ट किडनी बायोप्सी, अगर ज़रूरत है तो गो फॉर किडनी बायोप्सी. नेक्स्ट किडनी यूरिन, ब्लैडर, KUB एक्सरे, USG. सो यूरिन एनालिसिस हमको ब्लड सेल्स प्रेजेंट है और नहीं वो देख कर सकता है. नेक्स्ट यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी, वो आइडेंटिफाई कर सकता है. 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन सेंड करना है, क्योंकि वो 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन में हमको पता चलेगा प्रोटीन कितना एक्सक्रीट हो रहा है. वो मोर देन 50 mg/kg पर डे है तो वो अब नॉर्मल है. नेक्स्ट सीरम, दैट इज प्रोटीन लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल, नाइट्रोजन, सोडियम लेवल, ये सारे चीज़ आइडेंटिफाई करना है. उसमें प्रोटीन डिक्रीज होगा, दैट इज हाइपोएल्बुमिनीमिया, हाइपरलिपिडीमिया. कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा होगा, सोडियम लेवल कम होगा, हाइपोनेट्रीमिया. नेक्स्ट so 24 hours urine protein measurement, then total protein estimation. If more than 3.5 liter per 24 hours means it's notable.
नेक्स्ट मैनेजमेंट, मेन ऑब्जेक्टिव्स, पहले इन्फेक्शन कंट्रोल करना है. नेक्स्ट नॉर्मल एडजस्टमेंट, दैट इज़ बेबी को अडेप्ट करने का, क्योंकि वो हॉस्पिटलाइजेशन फिर होम ये वाला एडजस्टमेंट के लिए हम प्लान करना है. नेक्स्ट एडिमा को कंट्रोल करना है, बेबी को अच्छा न्यूट्रिशंस फूड देना है. नेक्स्ट प्रमोशन ऑफ गुड फिजिकल एंड मेंटल हाइजीन. फर्स्ट इज रिडक्शन ऑफ प्रोटीन एक्सक्रीशन. ओके, उसके लिए ड्रग प्रेडनिसोलोन daily dose 2 mg per kilogram per day orally in divided dose for 6 weeks देना है. Okay, then it is given after 1 to 5 mg per kilogram a single dose on alternative days for 6 weeks. Then treatment discontinue करना है. Next, frequent relapses are treated by alkylating agents such as cyclophosphamide. That means 2 mg per kilogram daily for 12 weeks देना है. That is nitrogen mustard, cyclosporin और levamisole. Next, diuretics, क्योंकि बॉडी सारे एडिमा होगा उसके लिए diuretics देना है. And salt poor albumin may be indicated, also indicate severe edema. उसके लिए furosemide देना 1 to 44 mg per kilogram per day in 2 divided dose, or with aldosterone antagonist spironolactone 2 to 3 mg per kilogram per day in 2 divided dose as per physician order. Next, protein rich diet देना है, that is well balanced diet, sodium कम restricted diet and protein rich diet देना है. water restriction should be there. salt also कम देना क्योंकि एडिमा कंट्रोल करने के लिए. Next is nursing management, monitor edema. Okay, then urine analysis, albumin, intake output chart maintain करना है. Then abdominal girth monitor करना है, daily weight monitor करना है. Next is administer medications, that is diuretics, antibiotics, corticosteroids. क्या क्या डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहे हैं वो सारे चीज़ बेबी को देना है. नेक्स्ट इज इम्प्रूव न्यूट्रिशनल स्टेटस, उसके लिए लो सोडियम डाइट, हाई कैलोरी एंड हाई प्रोटीन डाइट, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट फीडिंग. नेक्स्ट, एनकरेज एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज, बेबी को एक्सरसाइज एंड डेली एक्टिविटीज़ को एनकरेज करना है. मेंटेन स्किन इंटेग्रिटी, क्योंकि एडिमा विल बी देयर, उसके वजह से स्किन डैमेज होने का चांस ज़्यादा है, उसके लिए स्किन इंटेग्रिटी मेंटेन करना है. दैट इज प्रॉपर पोजीशन चेंजिंग, स्किन केयर, देन स्किन ब्रेकडाउन प्रिवेंट करना है, अगर है तो उसको ट्रीट करना है. देन प्लान फॉर डिस्चार्ज एंड कॉम्प्लिकेशंस, acute renal failure, then renal vein thrombosis, atherosclerosis, then हार्ट डिजीज, फ्लूइड ओवरलोड, उसकी वजह से पल्मनरी एडिमा, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, देन इन्फेक्शन आएगा, इसलिए न्यूमोकॉकल निमोनिया होने का चांस ज़्यादा है. ओके, नेक्स्ट इज पर्ल, 5 पर्ल्स इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम. पर्ल 1, डोंट बी फूल्ड बाय यूरिन एनालिसिस. Second is differential diagnosis, that means history, we have to collect in detail history. Third is kidney biopsy. Fourth, managing edema, and the fifth is proper treatment. Okay, these are about nephrotic syndrome. So अभी तक हम नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में डिस्कस किया. अगर आपको कुछ डाउट है तो कमेंट्स में आपको पूछ कर सकता है. एंड इफ़ टीचिंग को मॉडिफाई करना है वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकता है. एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियो एंड इफ़ यू लाइक माय टीचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल and like, comment and share. Thank you. See you next in with another conditions. Hope you all enjoy this. Stay safe, be happy. Thank you.